So our next topic is reaction involving carbon oxygen bond. Okay, our next reaction is involving carbon oxygen bond. So in that reaction there are three main reactions, that is reaction with hot dilute sulfuric acid, then reaction with PCl5 phosphorus pentachloride, then reaction with hot concentrated acid, and arylol alkyl ethers also having certain effect. So we will see one by one the reactions. Okay, so see, reaction is a reaction involving CO बॉन्ड. जिन रिएक्शंस में कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड है वो रिएक्शन हम देखेंगे. तो ये हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स. तो पहला है रिएक्शन विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कैसे रिएक्शन होती है वो देखेंगे. इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोलाइसिस. ओके, तो यहाँ पे जब ईथर रिएक्ट होता है HOH, ether when heated with dilute sulfuric acid, it undergoes hydrolysis to give the alcohol or phenol. Either you will get the alcohol or either you will get the phenol. Okay, so from H2SO4 two hydrogen and one oxygen is removed. Okay, from that sulfuric acid two hydrogens are removed and one oxygen is removed from here. So ultimately the remaining portion is SO3. तो यहाँ पे H2SO4 में से H2O रिमूव होता है और हाइड्रोलिसिस का मतलब ही वही होता है कि रिमूवल ऑफ H2O, लॉस ऑफ वाटर और रिमूवल ऑफ H2O. तो यहाँ पे HOH रिमूव होता है और HOH रिमूव होने के वजह से दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ओके, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे कंबाइन होता है तो बनेगा, इससे कंबाइन होने के बाद बनेगा R, ये ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन, ये R बचा है डैश, ये OH. तो इस तरह से दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स बनेंगे. तो मतलब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में अगर हम H2SO4 dilute H2SO4 when we use the dilute H2SO4 and it reacts with the ether molecule, then we get the alcohol. Okay, so hydronium ion is required as a catalyst for this reaction and certain temperature is required, heat is given. Okay, if this is the simple ether, if we take complex ether like ROR dash, same condition is there, but here the alcohol is also different. Okay, alcohol is also different. This is one alcohol and this is another alcohol because this alkyl group is different. Okay, this alkyl group is not same, different alkyl group is there, that's why the alcohol is also different. Okay,
these two are different alcohols. Okay, these are the same alcohols. Okay, in second case, if we use the complex ether or mixed ether, then we get the different type of alcohols. If we use the same type of or say simple ether, we get the same alcohols. Okay, if we use aryl alcohol, aryl ether means this is also complex. One group is aryl and another group is alkyl group. Same reaction occurred. So we get phenol. This is phenol because this is aryl ring, that is the benzene ring, and benzene ring when attaches to the OH molecules, then it is called as alcohol, phenol. Okay, and one alcohol molecule is prepared. So in that reaction, one phenol molecule and one alcohol molecule is prepared. Okay, so in that way, if when we use different type of the substrate, we get different type of product. If we use simple ether, then we get the same type of alcohol molecules. If we use the complex ether, then we get the alcohol molecules but different type of alcohol molecules. Okay, and if we use the one phenyl ring and one alkyl group, then we get phenol and alcohol. So in that way, we can say that here there is a breaking of carbon and oxygen bond. How? Because this alkyl group contains carbon dash, this is oxygen. So here there is a breaking of carbon oxygen bond. That's why it is given in that way. Reaction involving carbon oxygen bond removal. So here always there is a breaking of bond. ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ पे हर एक रिएक्शन में, तीनों के तीनों रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, रिमूव हो रहे हैं वो, और इस वजह से इस रिएक्शन को बोलते हैं कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रिमूवल. तो इस तरह से ये हमने रिएक्शन देखी. पहली सी में पहली रिएक्शन देखी हमने, रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. सेकंड रिएक्शन देखते हैं, उसमें reaction with PCl5, reaction with PCl5, phosphorus pentachloride. Okay, इसमें ether react with phosphorus pentachloride to give alkyl chloride. तो ether को हम react करते हैं, ये mixed ether है, इसको react करते हैं PCl5 से, phosphorus pentachloride से heat देते हैं, तो बनेगा अल्किल क्लोराइड. दो तरह के अल्किल क्लोराइड बनेंगे यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे ये जो PCl5 है, इसमें से ये जो एक यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अल्किल ग्रुप एक क्लोरीन से अटैच होगा, यहाँ पे 4 बचे, ये देख सकते हो आप. उसके बाद इस अल्किल ग्रुप को दूसरा एक क्लोरीन अटैच होगा, तो ये बन गया ये, और यहाँ पे ऑक्सीजन ही बचा, सिर्फ यहाँ पे फॉस्फोरस बचा और यहाँ पे क्लोरीन 3 बचे, तो ये हो गया POCl3. देख सकते हो आप POCl3. इतनी सिंपल रिएक्शन ये है. ओके, so the next reaction is reaction with hot concentrated acid. Reaction with hot concentrated acid. So acid means HCl or HBr or HI. Okay, so alkyl halide when reacts with
the acid, then we get, sorry, ether when react with alkyl halide we get the alkyl halide. Okay, means this is ether when react with al, that is acid, means X stand for chlorine, bromine or iodine or fluorine. Okay, we get Rx plus ROH. Next, okay, so in that reaction alkyl ethers react with hot concentrated HI or HBr. Here HI और HBr से वो रिएक्ट होता है ईथर और उससे अल्किल हलाइड मिलता है. ओके, टू गिव एन अल्कोहल एंड अल्किल हलाइड, तो अल्कोहल भी मिलता है एंड अल्किल हलाइड भी मिलता है. ओके, तो मतलब कि अगर ये जो ईथर है, ये ईथर अगर हम HI या HBr या HX कॉमनली वी कैन इट कॉल्ड एज HX से रिएक्ट करें तो हमको अल्किल हलाइड या दो प्रोडक्ट मिलते हैं, अल्कोहल भी मिलता है. इसको फर्दर इसमें से अगर ये रिएक्ट किया HX से तो फिर हमको फिर से अल्किल हलाइड मिलेगा. तो देखेंगे हम, तो ये जो ईथर है इसमें से ये बॉन्ड ब्रेक होगा. ओके, और ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा. तो ये R जो है वो X से रिएक्ट होगा, ये R और X कंबाइन होंगे RX, ये पहला बन गया. उसके बाद दूसरा R जो है वो ऑक्सीजन है और ये दूसरा R ऑक्सीजन से अटैच है और इससे ये अटैच होगा, मतलब बन गया ROH, दैट इज द अल्कोहल. इस तरह से ये रिएक्शन होगी. उसके बाद ये जो ROH वाला स्ट्रक्चर है ये अगर HX से रिएक्ट किया जाए फिर से तो क्या होगा कि ये जो OH और हाइड्रोजन है इससे बनेगा H2O और ये R और AX कंबाइन होके बनेगा RX, दैट इज अल्किल हलाइड. मतलब अगर हमको अल्किल हलाइड एंड अल्कोहल अगर मिल रहा है तो ये जो अल्कोहल है ये फिर से रिएक्ट हो सकता है एसिड से और हमको अल्किल हलाइड मिलेगा. तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है. तो यहाँ पे रिएक्टिविटी की ऑर्डर है, तो HX की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है तो इसमें HI ज़्यादा रिएक्टिव होगा अल्किल हलाइड से, HBr उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होगा और HCl सबसे कम रिएक्टिव होगा. HF का नहीं दिया है बुक में, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव या ज़्यादा एक्सप्लोजिव होने की वजह से उसका कुछ नहीं दिया है. ओके, तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग द हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो इसके बारे में हमने देखा. अगर हम एरिल अल्किल ईथर की अगर बात किया जाए, एरिल अल्किल हलाइड लेंगे हम, एनिसोल लेंगे. ये अगर HI से रिएक्ट किया जाए 398 केल्विन टेम्परेचर पे तो हमको मिलेगा, ऑब्वियसली क्या मिल सकता है, गेस करो, फेनॉल मिल सकता है, क्योंकि अल्कोहल और फेनॉल जो है वो मिलता है. पिछले वाले रिएक्शन में भी हमने देखा कि पॉसिबिलिटी है वो मिलने की. ओके, तो वो कैसे मिलेगा वो हम देखेंगे. तो इसमें ये जो CH3 ग्रुप है ये आयोडीन से रिएक्ट होगा और बनेगा CH3I, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे अटैच होगा तो बने यहाँ पे OH बनेगा, तो ये बनेगा फेनॉल. ओके, तो एरिल अल्किल ईथर जो है वो स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड एरोमेटिक रिंग.
तो ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और एरोमेटिक रिंग के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड जो है वो शॉर्टर होता है। ओके, और ये जो बॉन्ड शॉर्टर होने के वजह से ये स्ट्रांग होगा। ये तो आपको पता है कि जो बॉन्ड शॉर्ट होता है वो स्ट्रांग होता है और जो बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है वो वीक होता है। ओके, तो ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर है, शॉर्टर है, तो इस वजह से क्या होगा, एरिल अल्किल ईथर अंडरगोस क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड अल्किल बॉन्ड एंड यील्ड्स फेनॉल। तो ये इसमें इस ये स्ट्रांग होने के वजह से देखो मैं बताता हूँ आपको कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग होने की वजह से ये ब्रेक नहीं होगा, ये ब्रेक होगा। समझा आपको? ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ओके, ड्यू टू दैट ऑक्सीजन एंड फेनिल रिंग का जो बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होगा क्योंकि वो स्ट्रांग है। इस वजह से दूसरा जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ओके, और इस वजह से जो रिजल्टिंग कंपाउंड है वो बनेगा फेनॉल। रिजल्टिंग कंपाउंड क्यों फेनॉल बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन और जो रिंग है उसका बॉन्ड स्ट्रांग है और बॉन्ड स्ट्रांग होने के वजह से वो ब्रेक नहीं होगा, और वो ब्रेक नहीं होगा तो दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में अल्किल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और उस वजह से फेनॉल बनेगा। तो फेनॉल एंड अल्किल हलाइड ये बनेगा। ओके, ये फेनॉल है और ये जो है ये अल्किल ग्रुप है, ये आई मतलब हलाइड ग्रुप है। फेनॉल एंड अल्किल हलाइड बनेगा। तो इस तरह से HI से रिएक्शन करने से एरिल अल्किल ईथर्स का रिएक्शन जो है वो इस तरह से होगा। एरिल अल्किल ईथर्स का रिएक्शन इस तरह से होगा। ओके, तो नेक्स्ट वाला रिएक्शन देखेंगे हम, उसमें भी 3 रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर। तो इस डी टाइप के रिएक्शन में 3 रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक मतलब फेनॉल रिंग या बेंजीन रिंग होगी, एरोमेटिक ईथर्स। तो इसमें पहली रिएक्शन है हैलोजिनेशन, दूसरी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एंड तीसरी रिएक्शन है नाइट्रेशन। तो पहले हम नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे हम कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है। तो यहाँ पे भी जो रेजोनेंस का जो पॉइंट है वो है, तो अल्कोक्सी group in aromatic ether is a ring activating and ortho para directing group towards the electrophilic aromatic substitution. ओके, तो समझो ये है एक तो यहाँ पे ये एक बेंजीन रिंग है, उसको ऑक्सीजन और ये मिथिल ग्रुप अटैच है, तो ये है एनिसोल। ओके, तो इसमें ये जो है ये एक एरिल ग्रुप है। ओके, और ये अल्किल ग्रुप है और ये जो बीच में जो स्ट्रक्चर है ये ईथर का ग्रुप है। तो एरोमेटिक ईथर्स है ये। ओके, क्योंकि इसमें जो ये जो फेनिल रिंग है वो है, इस वजह से ये जो ईथर है इसको एरोमेटिक ईथर हम बोल सकते हैं। ओके, ये जब ओके
तो इसमें जो है, तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे लोन पेयर होती है। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, यहाँ पे आप अल्किल ग्रुप भी लिख सकते हो जनरली। तो ये जो पेयर है, ये पेयर दी जाती है इस बॉन्ड में, और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। आपको पता है रेजोनेंस क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरे जगह, और डीलोकलाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, तो डीलोकलाइजेशन होने के वजह से मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और चार्जेस हर एक पोजीशन में बदलती है। तो यहाँ पे जो अल्कोक्सी ग्रुप है आर, और ये ओ, और ये ऐसे रिंग है, तो ये जो ग्रुप है ये अल्कोक्सी ग्रुप है। ओके, तो अल्कोक्सी ग्रुप इन एरोमेटिक ईथर, ये जो एरोमेटिक ईथर है इसमें जो अल्कोक्सी ग्रुप है, ओके, इज रिंग एक्टिवेटिंग। ये अल्कोक्सी ग्रुप जो है वो रिंग एक्टिवेटिंग होता है, रिंग को एक्टिवेट करता है, रिंग एक्टिवेटिंग होता है वो, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। दूसरी बात, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ज्यादा होता है, इस वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन डायरेक्टिंग ज्यादातर ग्रुप होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग कम होते हैं, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग या मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के वजह से उसके अट्रैक्शन में कमी होती है। तो इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है एंड रिंग एक्टिवेटिंग है। ओके, तो इस तरह से ये रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि व्हाट इज रेजोनेंस एंड हाउ द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिड आउट। सो यहाँ पे प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट दिखता है, प्लस आर इफेक्ट मतलब आर मतलब रेजोनेंस इफेक्ट दिखता है ओ के ऊपर। ओके, रिजल्ट इन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। रेजोनेंस इफेक्ट दिखने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ती है। कौन से पोजीशन पे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे। ओके, तो ये जो है डायग्राम में आप देख सकते हो बुक में, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन स्टेजेस में वो ज्यादातर दिखाई देती है। तो ये आप बुक में देखो कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ रही है। ओके, तो इस तरह से ये जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है एरोमेटिक रिंग में। ओके, तो आगे जो रिएक्शन है वो हम देखते हैं। उसमें पहली रिएक्शन है हैलोजिनेशन, दूसरी है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एंड तीसरी है नाइट्रेशन। तो फर्स्ट रिएक्शन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज हैलोजिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, समझो ये एनिसोल है, एनिसोल reacts undergoes bromination, एनिसोल undergoes ब्रोमिनेशन मतलब हैलोजन, और रिएक्शन का नाम है हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन। ओके, एडिशन ऑफ हैलोजन। सो ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड, तो CH3COOH ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। तो ये जो एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड में ब्रोमीन डाला जाएगा, उसको डिसॉल्व किया जाएगा, और ऐसा डिसॉल्व हुआ जो एसिटिक एसिड है वो एसिटिक एसिड मतलब एक तरह का एक सॉल्वेंट की तरह वो
काम करने वाला है एसिटिक एसिड उसमें। तो आगे रिएक्शन जो है वो होगी, दो प्रोडक्ट तैयार होंगे, एक मेजर प्रोडक्ट तैयार होगा और एक माइनर प्रोडक्ट तैयार होगा। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है एनिसोल के, तो वो टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे होंगे एनिसोल के मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं वो है फेरिक ब्रोमाइड। फेरिक ब्रोमाइड ये कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं हम, पर इसके एब्सेंस में भी ये रिएक्शन होता है, मतलब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन इज ग्रेटर, द रिएक्टिविटी ऑफ एनिसोल टुवर्ड्स द हैलोजन इज ग्रेटर। ओके, तो ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है, ये क्यों हो रहा है कि ये जो फेरिक ब्रोमाइड कैटलिस्ट है, इसके एब्सेंस में भी ये रिएक्शन कैरिड आउट क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है, ये ग्रुप जो है मिथॉक्सी ग्रुप, ये वाला टोटल, तो ये मिथॉक्सी ग्रुप रिंग को एक्टिवेट करता है। ओके, बेंजीन रिंग को वो एक्टिवेट करता है। इट एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग एक्टिवेशन इज डन बाय दैट मिथॉक्सी ग्रुप। ये मिथॉक्सी ग्रुप बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। इस वजह से बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करने की वजह से हैलोजिनेशन होता है विदाउट कैटलिस्ट। ओके, व्हाई there is no requirement, or why halogenation in ether occur in even in absence of catalyst? Because the methoxy group present in anisole brings the activation of benzene ring, and that's why it undergoes the, or it the reaction occurred. तो यहाँ पे पॉसिबली दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, क्योंकि एनिसोल एक ही मॉलिक्यूल रहेगा ऐसा तो नहीं होता, सॉल्यूशन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे बी आर अटैच होगा। ओके, यहाँ पे OCH3 वैसे के वैसे, और यहाँ पे OCH3 वैसे के वैसे। ओके, तो ये जो पोजीशन है ये पैरा वाली पोजीशन है, और ये पोजीशन जो है ये ऑर्थो वाली पोजीशन है। तो ऑर्थो एनिसोल पैरा ब्रोमो एनिसोल बन सकता है, या ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल बन सकता है। इस तरह से दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। पर मेजर और माइनर, तो मेजर जो है ये है पैरा वाला, और माइनर जो है वो ये है ऑर्थो वाला प्रोडक्ट। तो ऑर्थो ही पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन ही क्यों, या यही प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं? क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो रिंग को एक्टिवेट करेगा, और रिंग को एक्टिवेट करने के वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पोजीशन पे ज्यादा होगी उस पे ब्रोमीन अटैच होगा। तो पैरा पोजीशन पे जो ब्रोमीन अटैच हुआ है और ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच हुआ है, तो वो किस वजह से है? तो वो उसकी वजह है कि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो पोजीशन पे ज्यादा होने के वजह से वो उस पोजीशन पे अटैच हो रहे हैं। तो इस वजह से मेटा पोजीशन को वो फेवर नहीं करेंगे, पैरा और ऑर्थो पोजीशन को वो फेवर करेंगे। ओके, तो we will see Friedel-Crafts reaction in next lecture.